Good morning, students. Good morning, ma'am. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. तो चलिए इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए सब लोग. Okay, ma'am. So we have read the chapter. We have read the chapter number 1, है ना? Yes, ma'am. The King Who Stung. नेक्स्ट आते हैं पोयम पर. देखो, The Ant and the Cricket. So Yes, ma'am. let's start reading this one by one. सबसे पहले समित आप पढ़िए. मैम कौन सी बुक निकालना है? ये वाली. चैप्टर नंबर 2. मैम मैंने निकाल लिया. ठीक है, तो आप ही स्टार्ट कर दीजिए सृष्टि. Good morning, ma'am. The Good morning. ant and the cricket. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of May, summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? At last, by starvation and famine made bold, all dipping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him बस करो. shelter. अभय. Yes, ma'am. Now you read. Ma'am, him shelter say. हाँ. Him shelter from rain, a mouth of grain. He will only borrow. He had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But tell me, dear sir, did you lay nothing by when the weather was warm? Said the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, say, go then, said the ant, and dance winter away. Thus ending, he hastily lifted the cricket, and out of the door turned the poor little cricket. Through this, for this a fable, the moral is good. If you live without work, you must live without food. हाँ. समित, अब आप रीड करिए स्टार्टिंग से. मैं स्टार्टिंग से. हाँ, हो गया ना पूरा यहाँ वाला. अब स्टार्टिंग से करो. Sally or cricket student of king since and were singing months of summer and of summer. Spring. And he found that a home. His completed was and wither was common. कहाँ Not पढ़ a रहे हो? कौन सी लाइन है? man, not a लाइन कौन सी है? Not a flower. Not a flower ना?
This is my fifth white answer. चलो Confirm not to a be flower. on Could he see? Could he see? Clear पढ़ो बेटा. Could he see? she आगे left on a tree. How what is say the cricket of me at last by starvation. sun Starvation मतलब भूख. And famine made bold. Painting with and all being with cold. Trembling with cold. Of way to see him. चंदन भर रहा गया तो नहीं होता पता Him नहीं from any Away he set off to a miserly and to see if to keep him alive he would grant. Arushi, नहीं कर सकते now you read. हाँ हाँ इतना ही है Who is talking in the background? Mute your mic. Arushi, Riya. Yes, ma'am. हाँ रिया आप क्लास 5 की हो. Yes, ma'am. न्यू एडमिशन. No, ma'am. अच्छा चलो तो फिर यहाँ से स्टार्ट करिए. बुक है कि नहीं आपके पास? No, ma'am. अच्छा बुक नहीं है. सो सबने रीड कर लिया है. आरुषि रिप्लाई ही नहीं कर रही है. सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. ठीक है. सो पोएम है किसके बारे में? द एंट एंड द क्रिकेट. एंट एंड द क्रिकेट के बारे में है ना. द एंड द क्रिकेट. अब ये क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं है. ये एक क्या है? इंसेक्ट है. ठीक है. सो a silly young cricket accustomed to sing. एक सिली सा थोड़ा सा बेवकूफ सा यंग सा क्रिकेट था जो हमेशा गाना गाता रहता था. accustomed to sing, हमेशा गाना गाता रहता था. The meaning of accustomed is, who is talking in the background? The background sound is very disturbing. Don't disturb the class, बच्चों. First of all, see the word meaning. The first word is silly. So here the meaning of silly is foolish. ठीक है. ये word meaning ध्यान से सुनिएगा और learn करिएगा. The second word is gay. The meaning of gay is happy, good and good. The next word is starvation. And the meaning of starvation is hunger, भूख, जोरों की भूख. Set off, to go. The next word is lay by. Lay by, to keep aside. ठीक है. See the next word. बच्चों वीडियो क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. So the next word is fable. Ma'am, video clear नहीं है. अच्छा नहीं है? No, ma'am.
अभी अभी हुआ? फेबल का मीनिंग क्या है? अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी, एक छोटी सी मॉरल मतलब सीख देने वाली किताब। अकस्टम, and the meaning of accustomed is used to, मतलब आदी होना, आदत होना। The next word is crumb, and the meaning of crumb is a small piece of wood. Wood. नेक्स्ट वर्ड क्या है? famine, and the meaning of famine is lack of, है ना, lack of food, खाने की कमी। famine का मतलब है खाने की कमी। miserly, miserly, and the meaning of miserly is someone who hates to spend money. Someone who hates to spend money. The next word is hastily. And the meaning of hastily is in a hurry. हरी So वर्ड मीनिंग देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। सिली का मतलब क्या है? फूलिश। सिली का मतलब है फूलिश। गे का मतलब है हैप्पी और गुड। स्टार्वेशन का मतलब है हंगर। सेट ऑफ, टू गो, जाना। ले बाय का मतलब है टू कीप असाइड, हटाना या उसी के साथ रहना, है ना। फेबल, द मीनिंग ऑफ फेबल इज अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी, मतलब एक छोटी सी शिक्षा देने वाली किताब, है ना, नैतिक किताब। हाँ, सो ले बाय मतलब अलग रखना, टू कीप असाइड अलग रखना। फेबल मतलब शॉर्ट नैतिक स्टोरी। अकस्टम्ड मतलब यूज टू, आदी होना। क्रम्ब मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। फैमाइन मतलब लेक ऑफ फूड, लैक लैक ऑफ फूड, खाने की कमी। मिजरली मतलब समवन हु हेट्स टू स्पेंड मनी, कोई ऐसा जिसको खर्च करने में, पैसे को खर्च करने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब उसको पैसा खर्च करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हेस्टली। हेस्टली का मतलब क्या है? इन अ हरी, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी में। तो चलो फिर देखते हैं पोयम का क्या है। सो अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, एक सिली सा यंग सा क्रिकेट था जिसको गाना गाना बड़ा पसंद था, हमेशा गाना गाता रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गे का मतलब यहाँ क्या है? हैप्पी, गुड। सो जो गर्म मौसम था, वार्म सनी मंथ मतलब सूरज वाला गर्म सा जो मौसम था, उसमें स्प्रिंग के समय पे गाना गाना उसको बड़ा पसंद, मतलब सुहावना सा मौसम था, बहुत अच्छा सुहाना मौसम था, खूब गाना गाता था वो। began to complain when he found that at home, वो तब शिकायत करने लगा जब वो अपने घर पर पहुंचा। हाँ, जब वो अपने घर गया
तो वो शिकायत करने लगा। मतलब क्या शिकायत करने लगा कि his cupboard was empty and winter was come. उसका जो कबर्ड था, जो अलमारी थी, वो empty थी। What is the meaning of empty? खाली खाली। उसकी पूरी अलमारी, हाँ, उसकी पूरी अलमारी खाली थी और ये देखकर वो कंप्लेन करने लगा। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, एक टुकड़ा भी उसके अंदर नहीं था। मतलब किसी चीज का, खाने का, किसी चीज का एक टुकड़ा भी नहीं था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फूल भी नहीं था कि वो उसको फूल भी दिखाई दे रहा हो। नॉट लीफ ऑन अ ट्री, किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं था, किसी भी पेड़ पर पत्ता नहीं था। अब मतलब उसने अलमारी देखी, उसकी अलमारी खाली। अब फ्लावर को देख रहा है तो एक भी फ्लावर नहीं है, ट्री को देख रहा है तो एक भी लीव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। सो क्रिकेट कहता है अब क्या होगा मेरा, अब मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold. What is the meaning of famine? lack of food. हाँ, तो वो क्या कह रहा है, अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरे पास खाना भी नहीं है और स्टारवेशन हो रही है, भूख भी लगी हुई है मुझे। And all drop, all dripping with wet and all trembling with cold. सब जगह से ड्रिप मतलब टपकना, सब जगह से बूंदे टपक रही है, सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है। ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड मतलब ठंड से, ट्रेम्बल करना मतलब कांपना, तो मैं ठंड से कांप रहा हूँ। Away he set off to a miserly ant. अब miserly, मिजरली मतलब someone who hates to spend money। हाँ, तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, जो पैसे खर्च करने से नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आपने देखा होगा, हाँ, वेरी गुड, उसको कहते हैं कंजूस। सो अब वो एक कंजूस सी चींटी के पास जाता है हेल्प के लिए। सो अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट। अब वो सेट ऑफ मतलब जा रहा है, किसके पास गया, चींटी के पास, जो कि बहुत कंजूस है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। क्या करने के लिए गया था, ये देखने के लिए कि क्या उसको जिंदा रहने के लिए वो जो एंट है, वो जो चींटी है, वो उसको शेल्टर देगी। शेल्टर मतलब ठिकाना, रहने के लिए ठिकाना देगी। अ मंथ ऑफ ग्रेन, अनाज का एक अमाउंट ऑफ ग्रेन मतलब थोड़ा सा पेट भरने के लिए अनाज और रहने के लिए मुझे शेल्टर क्या वो देगा। He wished only borrow, वो सिर्फ चाहता था कि वो उधार दे दे और बाद में जो क्रिकेट, जो हाँ क्रिकेट है, वो उसको चुका देगा। He had repay it tomorrow, क्या कह रहा है कि मैं बाद में उसका उधार जो है वो कल, मतलब कल मैं इसका उधार चुका दूंगा। आज इतनी ठंड और भूख का सामना करने के लिए मुझे वो थोड़ा सा अनाज उधार दे दे और शेल्टर दे दे। If not, he must die of starvation and sorrow. अगर नहीं तो उसे भी भूख और दुख से, मतलब अगर नहीं देगा तो क्रिकेट जो है वो भूख और सैडनेस से मरना होगा उसको। फिर says the ant to the cricket, I am not your servant and friend. तो चींटी ने क्या कहा उससे कि ना तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, ना ही तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ, ना तो तुम्हारा नौकर हूँ। But we ants never borrow, we ants never lend. ना तो हम जो एंट है, ना तो हम बोरो करते हैं, ना तो किसी से उधार लेते हैं, और ना ही लैंड करते हैं, ना ही तो हम किसी को उधार देते हैं। मतलब ना हम उधार लेते हैं, ना उधार देते हैं। But tell me dear,
डिड यू ले नथिंग बाय? वो कहती है लेकिन डियर एक बात बताओ, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया? When the weather was warm, जब मौसम गर्म था, जब इतनी सर्दियां नहीं आई थी, ये पानी नहीं टपक रहा था, तब क्या तुमने कुछ अपने लिए नहीं बचा कर रखा था? When the weather was warm, said the cricket, not I. नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बचाया, मैंने कुछ भी नहीं किया. My heart was so light that I sang day and night. मेरा दिल इतना हल्का था, मतलब मैं इतना खुश था, मैं इतना एंजॉय कर रहा था कि मैंने पूरे दिन रात मैंने सिर्फ सिंगिंग करी, मैंने सिर्फ गाना ही गाया. For all nature looked gay. ऐसा लग रहा था कि जो पूरा मौसम है, गे मतलब हैप्पी और गुड, पूरा जो वेदर है वो इतना खुशनुमा था कि मैं पूरे टाइम बस आराम करता रहा और सिंगिंग करता रहा, गाने गाता रहा. फिर यू सैंग सर, यू से, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आपने गाना गाया. Go then, said the ant, and dance winter away. तो वो क्या कहती है, जब गर्मियों में आप गाना गा गा कर बिता दिए, तब सर्दियां आ गई है, जाकर नाच लीजिए. Thus ending, he hastily lifted the wicket. और इस बात से उसने ये कहकर उसने अपना दरवाजा जो है वो उसके क्रिकेट के सामने बंद कर दिया. And out of the door turned the poor little cricket. और जो बेचारा गरीब क्रिकेट था वो दरवाजे के बाहर ठंड में पड़ा हुआ था. Though this is a fable, the moral is good. ये एक फेबल है, ये एक आपको शिक्षा देने के लिए कहानी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छा सीख मिल रहा है. बताइए क्या सीख मिल रहा है सृष्टि? That we should not if we not काम करें should live without food. And we should not become lazy and idle, है ना? We have to work all along. हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, जो हमारे पास काम हो उसको हमें पॉजिटिवली एकदम करते रहना चाहिए. कभी भी आइडिल नहीं बनना है, कभी भी लेजी नहीं बनना है ना? अगर आप लेजी बनोगे, काम नहीं करोगे, तो अंत में क्रिकेट के जैसा ही हाल हो सकता है. So if you live without work, you must live without food. अगर काम नहीं करोगे तो हो सकता है कि खाने को कुछ भी ना बचे, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा फ्यूचर क्या है. किसी को पता है किसी का फ्यूचर क्या है? कोई नहीं जानता कि फ्यूचर क्या है. तो आगे चल के हमें फूड मिलता रहे, शेल्टर मिलता रहे, इसके लिए बच्चों हमें हमेशा वर्क करते रहना, ताकि फ्यूचर में चल के हमारे पास इतनी अर्निंग हो कि हम अपने एक्सपेंसेस जो है उसको उठा सकें, है ना? हमेशा तो हम किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते. So ये वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा. Now let's come to the question answer. Why did the cricket complain? बताइए. The cricket complained because his cupboard was empty and no flowers and no leaves on the tree. हाँ. So the cricket was the cricket complained because in his cupboard there was nothing to eat, nothing to lay. कुछ भी उसके पास खाने को नहीं था, ना ही तो कुछ बिछाने के लिए था, और हर जगह सिर्फ on the snow covered ground, हर जगह सिर्फ स्नो ही स्नो थी. पूरे जगह को स्नो ने कवर कर रखा था और उसके पास कुछ भी नहीं था. Why did the cricket go to the ant? जो क्रिकेट है वो एंट के पास क्यों गया? The cricket went to because he was hungry and he was no food and shelter.
Good. So cricket went to the So the cricket went to the ant because he wants to borrow some food and shelter from the ant. है ना, उसको ant से थोड़ा सा कुछ borrow करना था. What did the cricket say he did when the weather was warm? क्रिकेट ने क्या बताया, उसने क्या किया था जब वेदर अच्छा था, वार्म था? The cricket sang day and night and didn't hurt any. He said to the ant when the weather was warm. क्रिकेट sang day and night when the weather was warm, है ना, पूरे दिन रात वो सिर्फ गाने गाता रहा जब वेदर ये था, हैप्पी एंड गुड था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What did the ant advise the cricket to do in winter? Ant ने क्रिकेट को क्या एडवाइस किया करने को विंटर में? To dance winter away. The ant advised the cricket to do the dance in winter away. So the ant advised the cricket to dance in winter, dance away in winter. ठीक है? So fill in the blanks देखिए क्या है. In the following lines from the poem, his क्या होगा इसके आगे बताइए, फिल करिए. His cupboard was empty and winter was come. Next क्या है? Not a flower to be found. हाँ. फिर on the snow covered ground. क्या है? Ground. Covered the ground. Correct. Not a could he see. Leaf. Not a leaf he could see. Not a leaf on a tree. Oh, will become, says the cricket, of me. क्या होगा? What will. Correct. So ये चैप्टर समझ में आ गया बच्चों, पोएम पूरी समझ में आ गई, इसका जिस्ट जो था वो भी हमने आपको बता दिया, समझ में आया? हाँ बोलो. मैम जहाँ फ्लावर फिल किया है वहाँ पर क्रम्ब फिल करना है. अच्छा. हाँ मैम नॉट अ फ्लावर मैम लिखना है. Not a crumb to be found, है ना? Not a crumb to be found. हाँ, not a मैम जो फोर्थ वाला है उसमें फ्लावर लिखना है. सेकंड वाले में क्रम्ब है और फोर्थ वाले में फ्लावर है ना? यस मैम. हाँ चलो अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पर. हाउ अ मिस्टेक लेड टू द नोबेल प्राइजेस. कैसे गलतियां, है ना, कैसे गलतियां नोबेल प्राइजेस तक गई. अब ये क्या होता है, ये इसका क्या मतलब होगा, पता है किसी को? हाउ अ मिस्टेक, कैसे गलती हुई, नोबेल प्राइज के लिए गलती कैसे हुई. So the Nobel prizes are the most prestigious award in the world today. पूरे दुनिया में नोबेल प्राइज जो है सबसे ज्यादा कीमती पुरस्कार माना गया है. They have been awarded to several Indians too. और कुछ ऐसे इंडियंस है, कुछ ऐसे भारतीय है जो जिनको भी ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है. A total of 12 Indians have been awarded the prize, of whom 5 are Indian citizens and 7 of Indian origin. जिसमें से 5 जो थे इंडियन सिटीजन थे, लेकिन जो 7 थे वो इंडियन ओरिजिन थे, मतलब इंडिया में रहते थे. Let us know about the Indian citizens who have been conferred with this award. तो कौन कौन से ऐसे इंडियन सिटीजन है, मतलब भारतीय हैं जो इंडिया में आकर रहते थे, है ना, जिनको ये अवार्ड दिया गया है. कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर,
सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन एंड कैलाश सत्यार्थी। और जो ऐसे लोग हैं जो इंडिया में जिनका ओरिजिन इंडिया है वो कौन है? हरगोविंद खुराना। हाँ, और कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, रामाकृष्णन, वेंकटरमन रामाकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्णन और रोनाल्ड रॉस, रुडयार्ड किपलिंग और दलाई लामा। हाँ, तो 5 जो है वो कौन है? भारतीय नागरिक है, और 7 जो है वो भारतीय मूल के हैं, मतलब भारतीय ही हैं। सो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते हैं, वो फर्स्ट पर्सन थे इंडियन ओरिजिन के एंड ऑल्सो फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। कितनी बड़ी बात है कि पहले ऐसे एशियन थे, मतलब पूरे एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। दिस चैप्टर वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके हाँ, चलो तब तक के लिए जो स्पेलिंग है, वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स है, इनको आप लर्न करिएगा, और जो आज पढ़ाया है पोयम उसको भी एक बार लर्न करिएगा। ठीक है, चलो ओके मैम, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम।